everyone, welcome back to my channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you are new to my channel, please hit the subscribe button given below. And if you have not watched my previous videos on solid state and coordination compounds, so you can click on the I button given above. And then let's get started with today's topic that I have already started last time, that is halogen derivatives. So I have already made the videos on halogen derivatives from part 1 and 2. So you can click on the I button above and go for those videos. And today we will continue with this topic. So the topics to be covered in this chapter were these many, from which we are done with classification of halogen derivatives, nomenclature of halogen derivatives, methods of preparation of alkyl halides, physical properties, optical isomerism in halogen derivatives, and today we are going to start with chemical properties. This is a very important section of this unit. Many questions are asked from this section of the unit, even in the form of MCQs for various competitive exams and in this question answer part also. This is a vast section, so I will cover this section in 2 different videos. So let's begin with chemical properties of halogen derivatives. As you see the word chemical here, you must have understood that we are mainly going to discuss all the reactions related to halogen, that is alkyl halides. So let's first start with laboratory test of haloalkanes. So how in laboratory can we confirm that the given compound is alkyl halide? Suppose मैंने आपको एक टेस्ट ट्यूब में अल्काइल हाइलाइड दिया है और अभी आपको कंफर्म करना है कि दिया हुआ कंपाउंड अल्काइल हाइलाइड है, तो आप कैसे करोगे? So the first important thing to remember is haloalkanes or alkyl halides are neutral in aqueous medium. What do I mean by this word neutral? That is, haloalkanes will not change the color of red litmus paper or blue litmus paper. So both the litmus paper will remain unchanged. So you cannot test it by using any litmus test or any other physical test. So the only thing is that by using chemical properties of this, you can confirm that the given compound is a haloalkane. So what you have to do is, पहले अल्काइल हाइलाइड ले लो टेस्ट ट्यूब में, उसमें थोड़ा सा एक्वस सोल्यूशन मतलब पानी में मिक्स करके सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लो. तो एक टेस्ट ट्यूब लिया है मैंने, उसमें पहले मैंने अल्काइल हाइलाइड डाल लिया है और फिर एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड उसमें ऐड कर दिया. एंड देन you need to warm it. As soon as you warm it, this X will go out and OH will get attached to carbon. In short, you will get alcohol plus halide ion. अब ये जो सॉल्यूशन रिएक्शन के बाद हमें मिलेगा, जिसमें अल्कोहल और हालाइड आयंस हैं, इस सॉल्यूशन को हम नाइट्रिक एसिड एंड सिल्वर नाइट्रेट से ट्रीट करेंगे. तो हम उसमें क्या डालेंगे? नाइट्रिक एसिड एंड सिल्वर नाइट्रेट. As soon as you will add this silver nitrate to it,
the halogen will react with the silver nitrate, and what you will get is, here you will get silver halide, and this silver halide will precipitate out. उसका एक precipitate बन के नीचे टेस्ट ट्यूब में सेटल हो जाएगा. And as soon as you get the precipitate of silver halide, it confirms that the given compound was haloalkane. So what you have to do is, take the haloalkane, treat it with the sodium or potassium hydroxide. You will get a halide ion. Now treat this complete solution with nitric acid and silver nitrate. Silver nitrate will react with the halide ion to give silver halide, which will precipitate out and confirm that the given compound was haloalkane. So this is the laboratory test for haloalkanes. Now we will move towards the important part, that is nucleophilic substitution reactions of haloalkanes. So haloalkanes undergo nucleophilic substitution reactions. So the first question is, what do you mean by substitution reaction? तो ये वर्ड जैसे ही आप देखोगे, what do I mean by substitution reaction? Substitution means replacement. So substitution reaction मतलब एक ग्रुप या एटम ऑफ ग्रुप ऑफ एटम, ठीक है, एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम यदि दूसरे एटम या दूसरे ग्रुप ऑफ एटम से रिप्लेस हो जाता है, वर्ड रिप्लेस, ओके, रिप्लेस हो जाता है विदाउट चेंज इन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन. मतलब यदि मैंने कोई कार्बन लिया है कोई रिएक्शन में, ये वाला सपोज रिएक्शन है, इसमें एक ग्रुप ऑफ एटम दूसरे एटम से या ग्रुप ऑफ एटम से रिप्लेस हो जाएगा विदाउट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन चेंज हुए हुए. यहाँ पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp3, तो sp3 ही रहना चाहिए प्रोडक्ट में. यदि वो sp2 है तो प्रोडक्ट में sp2 ही रहना चाहिए, तो उसे हम कहेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सो बेसिकली when a group bonded to a carbon in a substrate is replaced by another group to get a product with no change in the state of hybridization of that carbon, the reaction is called as substitution reaction. In short, you have to remember the word replaced. Just you have to replace it, not add it, not remove it, just replace it. That is called as substitution reaction. So based on this concept, which of the following two reaction is a substitution reaction? So in the first reaction you can see that just OH replace हो गया है Cl से without change in the hybridization of carbon. यहाँ पे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और प्रोडक्ट में भी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है. मतलब कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं हुआ है, जस्ट रिप्लेसमेंट हुई है, और इसलिए मैं इस रिएक्शन को कहूँगी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. बट सेकेंड रिएक्शन में यहाँ पे HI इस मॉलिक्यूल को, इस अल्कीन मॉलिक्यूल को में ऐड हो गया है. इन शॉर्ट यहाँ का sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन अब sp3 बन गया है. इट कैन नॉट बी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्योंकि यू कैन सी दैट दैट इज एडिशन ऑफ ग्रुप, करेक्ट, दैट इज एडिशन ऑफ ग्रुप. So this is an addition reaction where the hybridization of carbon changes, but the first one is substitution reaction. Next question is the carbon carrying halogen in alkyl halide is an electrophile or a nucleophilic center? Ab what do I mean by this? So this is my alkyl halide, correct. Now इसमें आपको पता है मेरे हैलोजन पे एक डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है, हमने फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ते वक्त पढ़ा है. तो हैलोजन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है और कार्बन पे होता है डेल्टा पॉजिटिव चार्ज. डेल्टा नेगेटिव मतलब
ये है न्यूक्लियोफाइल. सो न्यूक्लियोफिलिक मीन्स विच हैव लोन पेयर, दैट हैव एक्स्ट्रा लोन पेयर. और नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफाइल, मीन्स which are electron deficient. So this carbon is electron deficient with delta positive charge, and this halogen is electron rich with delta negative charge, and therefore halogen is nucleophilic and carbon is electrophilic. And they have asked about carbon. So in the CX bond, carbon is electrophilic center, and as the carbon is a electrophilic center, therefore it reacts with the nucleophile. ठीक है, कार्बन क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज से रिएक्ट करेगा और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएगा, जिसमें ये न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस हो जाएगा. देयरफॉर द हैलो अल्केन्स शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. नाउ what I mean by nucleophilic substitution reactions. So just now I have told you, I mean by substitution, that is यहाँ पे हैलोजन सब्स्टिट्यूट हो गया न्यूक्लियोफाइल से, इसलिए इसे मैं कहूँगी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. और न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस हो गया, इसलिए ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो ये रिएक्शन कौन सा हो गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एंड द हैलोजन ब्रेक्स and a new bond between carbon and nucleophile is formed. Okay, but this substitution reaction now depends on some factors. The first factor is that it depends on the nature of the carbon. Nature of carbon से मतलब है मेरा whether वो अल्काइल हैलाइड टर्शरी इन नेचर है, टर्शरी मतलब 3 ग्रुप्स अटैच, whether that alkyl halide is tertiary in nature, या अल्काइल हैलाइड है सेकेंडरी इन नेचर, या अल्काइल हैलाइड है प्राइमरी इन नेचर. मतलब उस कार्बन को 3 कार्बन अटैच, इस कार्बन को 2 कार्बन अटैच, इस कार्बन को 1 कार्बन अटैच. सो टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट फास्टर देन द सेकेंडरी and secondary reacts faster than the primary. Next thing जिस पे substitution reaction depend करता है वो है nature of halogen. So alkyl iodide reacts faster than alkyl bromide, which reacts faster than alkyl chloride, and which reacts faster than alkyl fluoride. Now next is you will ask why so. ऐसा क्यों होता है? देखो, फ्लोरीन का साइज स्मॉल है, क्लोरीन उससे थोड़ा बड़ा है, ब्रोमीन उससे भी थोड़ा बड़ा है, और आयोडीन सबसे बड़ा है. ये साइज की वजह से क्या होता है, जब कार्बन इसके साथ बॉन्ड बनाने जाता है तो इसका बॉन्ड स्मॉल रहता है. जितना बॉन्ड स्मॉल रहेगा, क्योंकि ये स्मॉल एटम है, तो इसका बॉन्ड जो बनेगा वो स्मॉल रहेगा, और ये बॉन्ड जब स्मॉल रहेगा तो स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, तो इसे ब्रेक करने में मुश्किल होगी, क्योंकि हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कार्बन और हैलोजन बॉन्ड को ब्रेक करना है. तो ब्रेक करना जितना आसान रहेगा उतना जल्दी रिएक्शन होगा. यहाँ पे ब्रेक करना मुश्किल है कार्बन और फ्लोरीन के बॉन्ड को, इसलिए यहाँ पे रिएक्शन स्लो होगा. बट कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड एक बड़ा बॉन्ड है, क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा है, इसलिए उसके न्यूक्लियस से कार्बन के न्यूक्लियस तक बॉन्ड बनाने में ज़्यादा बॉन्ड लेंथ लगती है. बॉन्ड लेंथ इंक्रीज, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस. जितना लेंथ इंक्रीज होगा उतना स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा, और बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा तो उसको ब्रेक करना भी इजी है. तो कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड यहाँ इजीली ब्रेक हो जाएगा, और न्यूक्लियोफाइल इजीली कार्बन के साथ जुड़ सकता है, और इसलिए alkyl iodide reacts faster than alkyl fluoride, and you can similarly explain for alkyl bromide and alkyl chloride. Okay, so these are the two basic factors on which nucleophilic substitution reaction depends. Based on this, the reactions, nucleophilic substitution reactions are of two types.
that is SN1 and SN2. Now we are going to see them one by one. So, before going towards that, let's see the different types of nucleophilic substitution reactions. So, when alkyl halide is treated with sodium hydroxide or potassium hydroxide, it end up with alcohol. Means यहाँ पे halide atom OH से substitute हो गया है. So, ये हो गया alcohol. जब alkyl halide रिएक्ट करता है सोडियम अल्कोक्साइड से तो ओ दे देगा ईथर. यहाँ पे हैलाइड एटम आपका अल्कोक्साइड आयन से रिप्लेस हो गया है. जब अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करेगा सिल्वर कार्बोक्सिलेट से ओ देगा ईस्टर. यहाँ पे हैलाइड एटम रिप्लेस हो गया है कार्बोक्सिलेट आयन से एंड देयरफॉर इट फॉर्म्स अ ईस्टर. When alkyl halide reacts with ammonia, it gives you primary amine. तो यहाँ पे alkyl halide replace हो गया है amine से, so it is primary amine. Next, alkyl halides on reaction with KCN give you nitrile, that is alkyl cyanide. तो यहाँ पे आपका halide replace हो गया है CN से. जब alkyl halide रिएक्ट करेगा AgCN से तो देगा आइसोसाइनाइड. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस डिफरेंस. व्हेन रिएक्ट्स विथ पोटेशियम साइनाइड इट गिव्स यू अल्काइल साइनाइड. व्हेन रिएक्ट्स विथ सिल्वर साइनाइड इट गिव्स यू आइसोसाइनाइड. दिस डिफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर. पोटेशियम साइनाइड के साथ साइनाइड और सिल्वर साइनाइड के साथ आइसोसाइनाइड. जब अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करेगा पोटेशियम नाइट्राइड से वो देगा अल्काइल नाइट्राइड. बट जब अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करेगा सिल्वर नाइट्राइड से तो वो देगा नाइट्रो अल्कीन. अगेन देयर इज अ डिफरेंस. बोथ आर पोटेशियम नाइट्राइड एंड सिल्वर नाइट्राइड. बोथ आर नाइट्राइड but they end up with alkyl nitrite and nitroalkene. Now, the question asked here is, alkyl halides when treated with alcoholic solution of silver nitrite give nitroalkenes, whereas with sodium nitrite they give alkyl nitrites. Explain. अब इसका रीज़न क्या है? देखो, दोनों केसेस में जब पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्ट करता है या पोटेशियम नाइट्राइट के साथ, वो नॉर्मल साइनाइड या नाइट्राइट प्रोडक्ट ही देता है. बट सिल्वर के साथ जब रिएक्ट करता है, सिल्वर साइनाइड या सिल्वर नाइट्राइट के साथ, तो वो कुछ अलग प्रोडक्ट देता है, जैसे आइसोसाइनाइड एंड नाइट्रोअल्केन. दिस इज बिकॉज द न्यूक्लियोफाइल हियर इज एम्बिडेंट इन नेचर. What do I mean by the word ambident? You have come to this word in the chapter coordination compound. Ambident means ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बन थ्रू भी बॉन्ड बना सकता है और नाइट्रोजन थ्रू भी. सिमिलरली यहाँ पे वो ऑक्सीजन थ्रू भी बॉन्ड बना सकता है और नाइट्रोजन थ्रू भी. सो जब प्रोडक्ट में वो कार्बन थ्रू बॉन्ड बनाता है तो हो जाता है साइनाइड, या फिर नाइट्रोजन थ्रू बनाता है तो हो जाता है आइसोसाइनाइड, और जब ऑक्सीजन थ्रू बनाता है इस केस में तो बन जाता है नाइट्राइट, और जब नाइट्रोजन थ्रू बनाता है तो बन जाता है नाइट्रोअल्केन. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज दिस इज बिकॉज ऑफ द एम्बिडेंट नेचर ऑफ द न्यूक्लियोफाइल. सो एम्बिडेंट नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल नाइट्राइट और नाइट्रोअल्केन. Next question is, what is meant by order and molecularity of reaction? So the answer to this is, order of reaction is defined as sum of exponents to which the concentration terms in rate law are raised. Okay, in short, order of reaction means the number of component on which the rate of reaction is dependent. Okay,
So don't get confused over here. We are going to discuss this again in detail in chemical kinetics. Now, what is molecularity of reaction? So, the molecularity of reaction is the number of reactant molecules taking part in the reaction. कितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल उस रिएक्शन में पार्ट लेंगे, वो मॉलिक्युलरिटी हो गई. और उनमें से कितने रिएक्टेंट पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड हुआ, वो ऑर्डर हो गया. तो मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट है. सपोज मेरे पास एक रिएक्शन है A प्लस बी जो मुझे C दे रहा है. सो द मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन इज 2. 2 इज द मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन, क्योंकि A और B दो रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट C देने में. बट सपोज रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ A पे डिपेंडेंट है, B पे नहीं, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 हो गया, क्योंकि रेट सिर्फ A पे डिपेंडेंट है, सिर्फ एक पे. सो ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी इज दिस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is meant by mechanism of chemical reaction? So, mechanism of chemical reaction is the complete step-by-step description of how and which bonds break and which bonds are formed, in what manner, in what order to get the product. In short, mechanism of reaction ये हुआ कि A और B किस तरह से एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहे हैं या बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं C देने के लिए, उसे हम कहेंगे मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन. सो आपको समझ गया. ऑर्डर मतलब जिस पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंडेंट है, मॉलिक्युलरिटी मतलब कितने रिएक्टेंट इन्वॉल्व है रिएक्शन में, और मैकेनिज्म मतलब कैसे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, कौन से स्टेप में ब्रेक हो रहा है, कैसे बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, कौन से स्टेप में फॉर्म हो रहा है, हुआ मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शंस. नाउ विल मूव टुवर्ड्स द मैकेनिज्म ऑफ एसएन रिएक्शन. सो मैकेनिज्म ऑफ एसएन रिएक्शन हमने अभी देखा है कि सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एंड हैलोजन इज गोइंग टू ब्रेक and a new bond between the carbon and nucleophile is going to be formed. In short, ये हेट्रोलिसिस टाइप ऑफ रिएक्शन है. इसे मैं हेट्रोलिसिस क्यों कहूँगी? क्योंकि जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तब हैलोजन दोनों इलेक्ट्रॉन इस कोवैलेंट बॉन्ड से लेके चला जाएगा कार्बन पे एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डाल के. तो ये जो कोवैलेंट बॉन्ड है वो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा था, बट हैलोजन जाते वक्त दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला गया विदाउट कार्बन को कोई इलेक्ट्रॉन दिए, इसलिए ये हो गया हेट्रोलिसिस रिएक्शन. और एक न्यू बॉन्ड फॉर्म होगा कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच में, जिसमें न्यूक्लियोफाइल अपना दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन के साथ शेयर करेगा. तो कार्बन जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया था वापस नॉर्मल हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रॉन शेयर करके. इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेट्रोलिसिस टाइप ऑफ रिएक्शन है. और ये रिएक्शन दो टाइप का है, SN1 एंड SN2. Now let's see them one by one. First, let's start with SN2 mechanism. So first, what is the full form of SN2 mechanism? It is substitution nucleophilic bimolecular. ठीक है, substitution nucleophilic bimolecular reaction. Up, this is your substrate, this is your nucleophile. So write down here, this is your substrate, this is your nucleophile, this is your product, and this is your leaving group. So you can see the bond between the substrate, the bond between the carbon and halogen has been broken, and in product a new bond between the carbon and nucleophile has been formed. So this is how the reaction you can say. तो यहाँ पे क्या हुआ basically, your halogen is replaced by your nucleophile. So this is nucleophilic substitution reaction.
Why it is bimolecular? Because here the rate of reaction depends on both, that is your substrate and your nucleophile. So rate of reaction किस पे डिपेंडेंट हो रहा है यहाँ पे? दोनों पे, सबस्ट्रेट पे भी, न्यूक्लियोफाइल पे भी. इसलिए इस रिएक्शन को मैं कहती हूँ सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर रिएक्शन. अब रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे काउंट करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्शन के स्लो स्टेप से काउंट किया जाता है. रिएक्शन के मैकेनिज्म को स्टडी किया जाता है, उसमें जो सबसे स्लो स्टेप है उस स्टेप से हम रेट ऑफ रिएक्शन काउंट करते हैं. यहाँ पे कहा गया है कि रेट ऑफ रिएक्शन न्यूक्लियो सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंडेंट है. इसका मतलब स्लो स्टेप ऑफ रिएक्शन में सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों भी इन्वॉल्व्ड है. स्लो स्टेप ऑफ रिएक्शन में क्या है? सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों इन्वॉल्व्ड है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन दोनों पे डिपेंडेंट है. इससे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, मतलब ये रिएक्शन सिर्फ वन स्टेप में हो रहा है. क्योंकि दो ही रिएक्टेंट है मेरे पास, दोनों रिएक्टेंट स्लो स्टेप में इन्वॉल्व है, मतलब एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रहा है. करेक्ट? तो इसका मैकेनिज्म इस तरह से है. दिस इज माय सबस्ट्रेट, this is my nucleophile. Now the nucleophile will attack on the substrate and there will be a transition state. Transition state में कार्बन 5 ग्रुप्स को अटैच है, इसलिए इसे कहेंगे पेंटावैलेंट कार्बन, कार्बन with 5 valency. During this stage there is a partial bond formed between the carbon and nucleophile and a partial bond between the carbon and the leaving group. ये leaving group क्यों है? क्योंकि ये जाते वक्त अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे पार्शियल बॉन्ड है, मतलब एक अधूरा बॉन्ड बना हुआ कार्बन और न्यूक्लियोफाइल में और एक अधूरा बॉन्ड बना हुआ कार्बन और लीविंग ग्रुप में, और तीनों हाइड्रोजन इसको एक प्लेन में है. तो ये तीनों हाइड्रोजन एक प्लेन में प्रेजेंट है इस कार्बन में 120 डिग्री एंगल के साथ, और ये दो ग्रुप इसको परपेंडिकुलर इस प्लेन को परपेंडिकुलर प्रेजेंट है, जो अधूरे बॉन्ड बनाए हुए हैं. और प्रोडक्ट में क्या होगा? ये लीविंग ग्रुप पूरी तरह चला जाएगा अपना नेगेटिव चार्ज साथ में लेके और OH न्यू बॉन्ड बना लेगा कार्बन से. तो दिस इज द मैकेनिज्म फॉर SN2 रिएक्शन. This is a single step reaction. This is the slow step. Both the reactants are involved in slow steps. So I have concluded it is a single step reaction. This is a transition state and this is the product. The important thing to remember here is that the nucleophile attacks from the back side of the carbon. Nucleophile इस reaction में कभी भी सामने के साइड से अटैक नहीं करेगा, कभी भी नहीं. याद रखो SN2 में वो हमेशा पीछे से अटैक करेगा. इसके पीछे दो रीज़न है. फर्स्ट रीज़न, Br या कोई भी हैलोजन एटम यहाँ पे जो प्रेजेंट होगा वो बिग इनफ है और इसका भी साइज न्यूक्लियोफाइल का बड़ा है. दोनों में स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगा. स्टेरिक हिंड्रेंस मीन्स जगह के लिए झगड़ा. स्टेरिक मतलब बहुत भीड़, क्राउड. तो पहला रीज़न है कि स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से वो यहाँ से अटैक नहीं करेगा. सेकेंड रीज़न है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिपल्शन और इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल पे भी नेगेटिव चार्ज है, लीविंग ग्रुप पे भी नेगेटिव चार्ज है, दोनों भी नेगेटिव हैं. और आपको पता है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, इसलिए जब न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड से अटैक करेगा तो इनमें एक रिपल्शन तैयार हो जाएगा और इसलिए रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा. इसलिए ये दो रीज़न की वजह से, पहला स्टेरिक और सेकेंड इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन की वजह से न्यूक्लियोफाइल कभी भी फ्रंट साइड से अटैक नहीं करता. वो एकदम अपोजिट टू दी लिविंग ग्रुप से अटैक करता है 180 डिग्री के एंगल से. क्यों? क्योंकि उनमें वो सबसे ज़्यादा दूर है एक दूसरे से, इसलिए इस समय इनमें बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन नहीं हो सकता
और दूसरा स्टेरिक हिंड्रेंस का प्रॉब्लम नहीं हो सकता। ठीक है, तो SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से रिएक्ट करता है और लीविंग ग्रुप फ्रंट साइड से लीव करता है, इसलिए हमें प्रोडक्ट में मिलता है इन्वर्जन। सो व्हाट डू आई मीन बाय इन्वर्जन? तो आप बारिश में जब छतरी लेके चलते हैं तो आपकी छतरी तो ऐसी है, और अब जब बहुत तेज हवा आती है तो क्या हो जाता है, छतरी उल्टी हो जाती है। तो ये आपने सबने रियलाइज किया होगा। तो ये क्या हो गया, इन्वर्जन। तो पहला मेरा प्रोडक्ट ऐसे था सपोज, अब वो हो गया ऐसे। सो दिस इज कॉल्ड एज inversion, and this inversion was studied by scientist Walden, and therefore it is called as Walden inversion. So this is about the SN2 mechanism. So let us summarize it with the silent features of SN2 mechanism. So the silent features is very important to remember in exam. In exam, if they ask about SN2 mechanism, you need to write its full form, substitution nucleophilic bimolecular. You need to write this reaction, the rate of this reaction, this is the mechanism, and then this 4 points or 5 points as the silent feature, and you can score complete 4 to 5 marks. Okay, so the first thing is SN2 mechanism is a single step reaction. मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मिंग दोनों भी एक ही स्टेप में हो रहे हैं। सो इट इज अ सिंगल स्टेप मैकेनिज्म। सेकेंड थिंग, देयर इज अ बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। हमने अभी देखा है न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करता है, बैक साइड से। वाई? बिकॉज ऑफ 2 रीजन। फर्स्ट रीजन इज द स्टेरिक हिंड्रेंस, कि न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप दोनों भी बड़े हैं, दोनों में स्टेरिक हिंड्रेंस का प्रॉब्लम हो जाएगा, जगह का प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए। सेकेंड है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन क्यों होगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल और द लिविंग ग्रुप दोनों में भी नेगेटिव चार्ज है, और सपोज दोनों एक ही साइड से रिएक्ट कर रहे हैं तो उनमें रिपल्शन होने वाला है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा। सो बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। नेक्स्ट, द ट्रांजिशन स्टेट ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड लिविंग ग्रुप आर बॉन्डेड टू कार्बन विथ पार्शियल बॉन्ड्स। सो द न्यूक्लियोफाइल एंड द लिविंग ग्रुप दोनों भी एक अधूरे बॉन्ड के साथ कार्बन से जुड़े हुए होते हैं, एंड दे बोथ कैरी पार्शियल नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट, द ट्रांजिशन स्टेट कंटेन्स penta-coordinated carbon with 5 different groups. So transition state में है carbon with 5 different groups, 3 complete bond and 2 partial covalent bond. Next, SN2 reaction is seen to proceed with inversion of configuration. What I mean by this? यहाँ पे ये ऐसे था, अब वो inverted हो गया है। तो जस्ट एज आई हैव टोल्ड यू, अम्ब्रेला जब बारिश में उल्टा हो जाता है, सो इट इज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। सो SN2 रिएक्शन प्रोसीड्स बाय इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, जस्ट लाइक फ्लिपिंग ऑफ अम्ब्रेला, एंड इट इज कॉल्ड एज वाल्डन इन्वर्जन बिकॉज इट वॉज स्टडीड बाय साइंटिस्ट वाल्डन। इन्वर्जन मतलब उल्टा होना, सो इट इज वाल्डन इन्वर्जन। सो दिस इज ऑल अबाउट SN2 रिएक्शन। नाउ let's move towards the SN1 mechanism. So the full form for SN1 mechanism is substitution nucleophilic unimolecular. Unimolecular, remember this word. Now, again I have this substrate, I have my nucleophile, I have my product and my leaving group. Correct? So substrate reacts with nucleophile to give product and the leaving group. Now, the rate of reaction only and only depends on the substrate. It does not depend on the nucleophile as SN2 reaction. यहाँ पे rate मतलब the slow step of the reaction सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियोफाइल पे, सबस्ट्रेट पे डिपेंड हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं हो रहा।
इसका मतलब मेरे पास दो रिएक्टेंट है और रिएक्शन स्लो स्टेप में एक ही रिएक्टेंट पे डिपेंडेंट है, दूसरे पे नहीं। मतलब दिस इज अ 2 स्टेप रिएक्शन। फर्स्ट स्टेप में सिर्फ ये रिएक्ट हो रहा है, सेकेंड स्टेप में ये। सो ये स्लो स्टेप में रिएक्ट हो रहा है और ये फास्ट स्टेप में। सो लेट्स सी what is the mechanism. So you can see here, this is my substrate where in the slow step, that is the first step, the leaving group leaves. Leaving group अपने आप लीव करेगा अपने हेट्रोलिसिस मैकेनिज्म से, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर लेके वो लीव कर देगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इसलिए बन जाएगा कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन प्लेनर इन नेचर होते हैं, मतलब उसके तीनों ग्रुप एक ही प्लेन में प्रेजेंट होते हैं और सारे ग्रुप्स के बीच का एंगल होता है 120 डिग्री। सो ये बन जाता है कार्बोकैटायन। ये फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप है, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है और इसलिए रिएक्शन सिर्फ सबस्ट्रेट पे डिपेंड होता है। नेक्स्ट स्टेप फास्ट स्टेप है। न्यूक्लियोफाइल बहुत इजीली सबस्ट्रेट पे रिएक्ट करेगा और प्रोडक्ट दे देगा। ये बहुत फास्ट स्टेप है क्योंकि कार्बोकैटायन अनस्टेबल है। इंटरमीडिएट्स आपको पता होगा अनस्टेबल ही होते हैं, इसलिए वो इंटरमीडिएट्स होते हैं। और इंटरमीडिएट अनस्टेबल है, इसलिए उसको स्टेबल बनाने के लिए न्यूक्लियोफाइल बहुत जल्दी से इस पे अटैक कर देगा और प्रोडक्ट दे देगा। इसलिए ये इन्वॉल्व ही नहीं होता है रेट डिटर्मिनेशन में और इसलिए SN1 रिएक्शन 2 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकैटायन, सेकेंड स्टेप फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट बाय अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकैटायन। So this is how you can explain SN1 reaction. So SN1 reaction is 2-step reaction. The first thing, this reaction goes via formation of carbocation which is planar in nature. जैसे कार्बोकैटायन प्लेनर इन नेचर है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक फ्रॉम फ्रंट ऑल्सो एंड इट कैन अटैक फ्रॉम बैक साइड ऑल्सो। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक कर सकता है? दो साइड से। SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल से बैक साइड से अटैक कर रहा था, बट SN1 में न्यूक्लियोफाइल दोनों साइड से अटैक कर सकता है क्योंकि कार्बोकैटायन प्लेनर है और इसलिए न्यूक्लियोफाइल दोनों साइड से अटैक कर सकता है। इसलिए हमें दो टाइप ऑफ प्रोडक्ट मिलता है, एक है OH विथ फ्रंट, एक है OH विथ बैक। दैट इज हमें दो इनैंशियोमर्स मिलते हैं, दोनों भी एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। अब ये वर्ड इनैंशियोमर यदि आपने पहली बार सुना है तो आप मेरा पिछले वाले वीडियो हैलोजन डेरिवेटिव्स के पिछले वाले वीडियो में जाके देख सकते हो इनैंशियोमर्स क्या है। सो मुझे यहाँ पे दो प्रोडक्ट मिलते हैं, दोनों इनैंशियोमर्स ऑफ ईच अदर हैं और मैंने आपको एक्सप्लेन किया है जब मुझे दोनों इनैंशियोमर्स 50% पॉसिबिलिटी के साथ मिलते हैं तो उसे कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर और इसलिए मुझे SN1 मैकेनिज्म में रेसिमिक मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलता है क्योंकि कार्बोकैटायन प्लेनर है, न्यूक्लियोफाइल दोनों साइड से अटैक कर पा रहा है विदाउट एनी प्रॉब्लम और इसलिए मुझे दो तरह के प्रोडक्ट मिल रहे हैं विथ OH फ्रंट अटैक, विथ OH बैक अटैक और दोनों भी 50% है, दोनों ही इनैंशियोमर ऑफ ईच अदर हैं, इसलिए मुझे मिलता है रेसिमिक मिक्सचर। सो लेट्स सी द साइलेंट फीचर। फर्स्ट थिंग इज it is a 2-step mechanism. Then heterolysis of CX bond मतलब breaking of carbon and halogen bond is a slow step and formation of the new bond with that planar carbocation intermediate is there. Okay, तो पहला थिंग है कि दो स्टेप रिएक्शन है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड ब्रेक होता है और कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन द कार्बोकैटायन एंड दिस इज अ फास्ट स्टेप रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफाइल कार्बोकैटायन पे अटैक करता है और ये रिएक्शन बहुत फास्ट है क्योंकि इंटरमीडिएट अनस्टेबल होता है, उसको स्टेबल प्रोडक्ट बनाने में ये बहुत फास्ट स्टेप हो जाता है। नेक्स्ट थिंग, SN1 रिएक्शन में इन्वर्जन नहीं होता, उसमें दोनों भी होता है, इन्वर्जन भी और रिटेंशन भी। देखो इन्वर्जन भी हुआ है 50% एज इट इज भी रहा है, दैट इज
रिटेन्ड, देखो 50% रिटेन्ड, 50% इन्वर्टेड, मतलब हमें दो इनैंशियोमर्स मिलते हैं प्रोडक्ट में, और दोनों इनैंशियोमर 50% पॉसिबिलिटी के साथ मिलते हैं। क्योंकि कार्बोकैटायन प्लेनर है इसलिए हमें मिलता है रेसिमिक मिक्सचर। इसलिए हमारा प्रोडक्ट कैसे होता है, रेसिमिक मिक्सचर, because the nucleophile can attack the planar carbocation from either side, which results in the formation of both the enantiomers of the product, and therefore it end up with racemic mixture. So this is all about SN1 and SN2 reaction. Now let's solve some problem. So the first problem is here. Draw the Fischer projection formula of two products obtained when product A reacts with OH minus by SN1 mechanism. याद रखो SN1 mechanism के साथ, मतलब अब मुझे इसका फिशर प्रोजेक्शन में ड्रॉ करना है। तो पहले मैं रिएक्टेंट को फिशर प्रोजेक्शन में ड्रॉ कर लूँगी, करेक्ट, कि मुझे प्रोडक्ट ड्रॉ करने में डिफ़िकल्टी ना हो। तो फिर आपको पता है फिशर प्रोजेक्शन, आपने 11th स्टैंडर्ड में स्टडी किया है उसे। और ये रहा मेरा फिशर प्रोजेक्शन में मेरा रिएक्टेंट, करेक्ट। तो जैसे दिया है मैं उस तरह से ही ड्रॉ कर लूँगी। अब ये SN1 मैकेनिज्म है तो इट इज़ बाय 2 स्टेप। फर्स्ट स्टेप इज़ अ स्लो स्टेप, करेक्ट, जिसमें मेरा हैलोजन एटम लीव करेगा और मुझे मिलेगा एक प्लेनर कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन को प्लेन में ड्रॉ करना ना भूले और उस पर पॉजिटिव चार्ज डालें। तो ये हो जाएगा C2H5, यहाँ है CH3 एंड टूवर्ड्स माई राइट इज NC3S7। अब आएगा मेरा न्यूक्लियोफाइल OH माइनस, दैट इज इन स्टेप 2 and it is a fast step reaction. अब OH minus can attack from both the side, either this side, okay, तो वो इस साइड से, मतलब सेम साइड जहाँ से हैलोजन ने लीव किया है उस सेम साइड से वो अटैक कर रहा है, इसलिए ये हो जाएगा C2H5। जहाँ से हैलोजन ने लीव किया वो सेम साइड से उसने अटैक किया है, और ये बन गया मेरा 1 प्रोडक्ट। क्योंकि SN1 में 2 प्रोडक्ट मिलता है, ये आपने भूलना नहीं है कभी। और फिर दूसरा ऑप्शन है कि वो अपोजिट साइड से अटैक करेगा, उसके लिए हम दूसरा कलर यूज़ करते हैं, और ये अपोजिट साइड से अटैक कर रहा है तो मुझे मिलेगा दूसरा प्रोडक्ट जिसमें OH ने पीछे से अटैक किया है, और इसलिए ये हो गया C2H5 जैसे है वैसे ही रहेगा, और ये NC3S7 भी नीचे ही रहेगा, जस्ट हो जाएगा CH3 यहाँ पे। तो दोनों मुझे आप देख सकते हो दोनों इनैंशियोमर्स ऑफ ईच अदर हैं, और दोनों 50% पॉसिबिलिटी के साथ बनेंगे क्योंकि कार्बोकैटायन प्लेनर है, और इसलिए मुझे रेसिमाइजेशन इन प्रोडक्ट मिलेगा। सो दिस इज़ द प्रोडक्ट फॉर द फर्स्ट रिएक्शन, बोथ द पॉसिबिलिटी inversion and retention. Now the second question. Draw the Fischer projection formula for the product when compound B reacts with OH minus by SN2 mechanism. याद रखो SN2। तो पहले ये मैंने ड्रॉ कर लिया CH3 फिशर में रिएक्टेंट को, और C2H5, और यहाँ है हाइड्रोजन। अब OH माइनस है, याद रखना ये SN2 मैकेनिज्म है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से ही अटैक करेगा, दैट इज़ 180 डिग्री फ्रॉम द लीविंग ग्रुप, और लीविंग ग्रुप लीव करेगा। तो अब मेरे पास आएगा ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट SN2 के लिए ड्रॉ करना भूलिए नहीं। तो ये है मेरा कार्बन, अब CH3 है, ये है हाइड्रोजन, और ये है C2H5, करेक्ट। अब पार्शियल बॉन्ड है कार्बन और Cl के बीच में, लिविंग ग्रुप के बीच में पार्शियल बॉन्ड है कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच में, करेक्ट। और ये दोनों पे है डेल्टा नेगेटिव चार्ज, और ये है मेरा ट्रांजिशन स्टेट। अब इसमें प्रोडक्ट में ड्रॉ करूँगी विथ इन्वर्जन, तो ये हुआ मेरा OH यहाँ पे आएगा जस्ट अपोजिट टू Cl। बाकी ग्रुप्स में इधर लिख दूंगी हाइड्रोजन और C2H5। ये प्रोडक्ट हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 2 का विथ 100% ऑफ इन्वर्जन।
That's why it is called as Baldwin inversion. Okay, I hope so you have understood this. If not, you can anytime ask me in the comment box. Next is factors affecting SN1 and SN2 reactions. कौन से फैक्टर्स हैं जो ये दोनों रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं? पहला फैक्टर, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट. तो सबस्ट्रेट कौन से नेचर का है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कंसीडर करना रिएक्शन के लिए. सो SN2 रिएक्शन में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप दोनों एक ही साथ प्रेजेंट है कार्बन के साथ, करेक्ट. तो कार्बन है पेंटा कोऑर्डिनेटेड, 5 बॉन्ड्स बना रहा है. तो सपोज यदि ये हाइड्रोजन की जगह मेरे पास बल्की ग्रुप प्रेजेंट है, देखो मैं हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रही हूँ बल्की ग्रुप से, यहाँ पे 1 बल्की ग्रुप से, यहाँ पे 2 बल्की ग्रुप से, ठीक है, यहाँ पे तीनों हाइड्रोजन को मैंने रिप्लेस कर दिया है. तो जैसे ही मैं हाइड्रोजन को रिप्लेस करती जाऊंगी बल्की ग्रुप से, इसका मतलब प्राइमरी कार्बन को मैं कर दिया है टर्शरी कार्बन. तो उसमें क्या हो रहा है, उसमें क्राउडिंग इंक्रीज हो रही है. क्राउडिंग इंक्रीज होगी तो न्यूक्लियोफाइल को रिएक्ट करना इस कार्बन के साथ डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि कार्बन 5 बॉन्ड बनाना उसके लिए इस कम जगह में डिफिकल्ट हो जाएगा. सपोज एक रूम है आपके घर में और उसमें मैंने 10 लोगों को ज़बरदस्ती भर दिया तो ज़्यादा डिफिकल्ट है, और उसी में मैंने सिर्फ 3 लोगों को या 5 लोगों को ही रखा तो ज़्यादा आसान है. तो सेम थिंग यहाँ पे. तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड को रिएक्ट करना SN2 मैकेनिज्म से बहुत ईजी है एज कम्पेयर टू टर्शरी अल्काइल हैलाइड, क्योंकि वहाँ पे क्राउडिंग ये बहुत कम है और डिस्टेबलाइजेशन भी कम रहेगा, क्योंकि वो 5 बॉन्ड ईजिली बना पाएगा. इसलिए प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट्स फास्टर देन द टर्शरी अल्काइल हैलाइड इन SN2 reaction to reduce the crowding. Next, for SN1 reaction. SN1 reaction में कार्बोकेटाइन बनता है. कार्बोकेटाइन बन रहा है, ठीक है. वापस मेरे पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, फिर सेकेंडरी है और फिर टर्शरी है. सो दिस इज द प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, देन दिस इज एक्चुअली प्राइमरी, दिस इज मिथिल. ओके, सो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड और टर्शरी अल्काइल हैलाइड. अब कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन है. तो पहला थिंग, कार्बोकेटाइन बनने के लिए लिविंग ग्रुप तो लीव कर देगा और वो अपने आप स्टेरिक हिंड्रेंस या फिर अपना स्टेरिक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है. इसलिए यहाँ पे स्टेरिक प्रॉब्लम का कोई इश्यू ही नहीं है. जब वेदर इट इज टर्शरी अल्काइल हैलाइड देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस, क्योंकि लिविंग ग्रुप ने लीव करके और जगह बना दी है ये ग्रुप्स के लिए, ठीक है. नेक्स्ट थिंग ये है कि कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है तो कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है ज़्यादा प्लस आई और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट से, जो आपने 11th स्टैंडर्ड में स्टडी किया है. प्लस आई इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट ये कार्बोकेटाइन को मोर स्टेबल करता है. व्हाई? कार्बोकेटाइन इज an इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज. एज इट इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इट नीड्स इलेक्ट्रॉन, and this electron can be stabilized, can be supplied by the methyl groups. ये मिथिल ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन ज़्यादा दे सकते हैं इस इलेक्ट्रॉन पुअर कार्बन को, और इसलिए टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स आर मोर स्टेबल देन द प्राइमरी टू फॉर्म कार्बोकेटाइन. और इसलिए टर्शरी हैलाइड्स जल्दी रिएक्ट करते हैं SN1 से एज कम्पेयर टू प्राइमरी, क्योंकि वो जल्दी कार्बोकेटाइन फॉर्म कर सकते हैं. सो इसका कंक्लूजन क्या है? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट्स वाया, प्राइमरी और मिथिल अल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट्स वाया SN2 रिएक्शन, while tertiary alkyl halides reacts via SN1 reaction. क्यों? क्योंकि SN2 के लिए स्टेरिक हिंड्रेंस कम चाहिए और SN1 के लिए हमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन चाहिए. तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स SN2 से रिएक्ट करेंगे, टर्शरी SN1 से, और सेकेंडरी पे डिपेंड करता है कि कौन से कंडीशन में है, कभी वो SN2 से रिएक्ट करेगा, कभी SN1 से. So this is the nature of substrate. Next is primary alkyl, allylic and primary benzylic halides show higher reactivity by SN1 mechanism than other primary alkyl halides. Explain. इसका रीज़न ये है कि देखो प्राइमरी है दोनों, अलाइलिक हैलाइड और बेंजेलिक हैलाइड दोनों प्राइमरी नेचर है. तो आप कहोगे मैम अभी आपने बताया
कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट करते हैं SN2 से, बट यहाँ पे आप बोल रहे हो SN1 से रिएक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों भी लिविंग ग्रुप लीव करके कार्बोकेटायन फॉर्म करेंगे जो बहुत ज़्यादा स्टेबल है रेजोनेंस से। आपने ये रेजोनेंस इफेक्ट स्टडी किया है 11th स्टैंडर्ड में। तो ये प्राइमरी एलाइलिक हैलाइड को या बेंजेलिक हैलाइड को दी रेजोनेंस इफेक्ट ज़्यादा स्टेबल कर रहा है, इस कार्बोकेटायन को ज़्यादा स्टेबल कर रहा है, और इसलिए ये कार्बोकेटायन बहुत जल्दी फॉर्म हो जाएगा। सो इंस्टेड ऑफ दिस बेंजेलिक अल्काइल हैलाइड और दी अलाइलिक हैलाइड रिएक्टिंग वाया SN2 मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म से रिएक्ट करने के बजाय वो क्या प्रिफर करेंगे कि वो हैलोजन लीव कर दे, कार्बोकेटायन फॉर्म कर ले जो स्टेबल है रेजोनेंस से, और फिर once they form the carbocation they can only react by SN1 mechanism. And because of this, that is SN1 reaction involves the formation of carbocation intermediate. The allylic and benzylic carbocation intermediate formed are resonance stabilized and therefore they favor SN1. क्यों SN1 फेवर कर रहे हैं प्राइमरी होके भी? क्योंकि वो कार्बोकेटायन फॉर्म कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा स्टेबल है रेजोनेंस से, और एक बार कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ मतलब वो SN1 से ही रिएक्ट करेंगे। सो दिस इज द रीजन। नेक्स्ट factor is nucleophilicity of reagent. So the first question is, give some examples of nucleophiles that are electrically neutral. Neutral मतलब उन पे कोई चार्ज नहीं है और वो न्यूक्लियोफाइल हैं, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं। उसका एग्जाम्पल है वाटर, अमोनिया, SH2, ओके, अमाइंस, ये सब एग्जाम्पल्स हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल का। फिर गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ आयोनिक न्यूक्लियोफाइल। उसके लिए एग्जाम्पल है O माइनस, X माइनस, OR माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेस एंड न्यूक्लियोफाइल। देखो ये जो भी मैंने लिखा है ये लोग बेस की तरह भी एक्ट कर सकते हैं और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी। तो क्या बेसिकली डिफरेंस है, कैसे बताओगे कि गिवन रिएक्शन में वो बेस है कि न्यूक्लियोफाइल है? तो याद रखना बेस सिर्फ H+ के साथ रिएक्ट करता है, बेस सिर्फ H+ के साथ रिएक्ट करता है। सो OH माइनस रिएक्टिंग विथ H+ टू गिव वाटर, दैट मीन्स OH माइनस इज अ बेस, ठीक है। बट अभी के एग्जाम्पल के हिसाब से अल्काइल हैलाइड के साथ जब OH माइनस रिएक्ट कर रहा है वो दे रहा है अल्कोहल, इसका मतलब अब वो है न्यूक्लियोफाइल। सो बेस मत देखो दोनों भी OH माइनस है, पर जब वो H+ के साथ रिएक्ट करता है तब वो होता है बेस, और जब वो कार्बन के साथ या इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट करता है तब वो होता है न्यूक्लियोफाइल। So this is the difference between base and nucleophile. So nucleophile is a species that uses its electron pair to form a bond with carbon. Okay, so it forms the bond with carbon. A more powerful nucleophile will attack the substrate and give you SN2 reaction, while SN1 reaction do not depend on the nucleophile. तो हमने पहले ही देखा है रेट ऑफ SN2 रिएक्शन सबस्ट्रेट पे भी डिपेंड होता है और न्यूक्लियोफाइल पे भी। इसलिए जब न्यूक्लियोफाइल बहुत स्ट्रांग हो तब वो SN2 रिएक्शन को फेवर करेगा। मतलब SN2 रिएक्शन होने के लिए आपको स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल चाहिए, क्योंकि SN2 रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड होता है। बट SN1 रिएक्शन के लिए आपको कैसा भी न्यूक्लियोफाइल चलेगा, वीक भी स्ट्रांग भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि SN1 रिएक्शन सिर्फ सबस्ट्रेट पे डिपेंड होता है, न्यूक्लियोफाइल पे नहीं, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट इज सॉल्वेंट पोलरिटी। तो सॉल्वेंट के पोलरिटी पे भी डिपेंड होता है कि आपका रिएक्शन कैसा है। सो रिमेंबर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हमेशा SN1 रिएक्शन को फेवर करेगा। क्यों? क्योंकि SN1 रिएक्शन को होने के लिए मुझे मेरा हैलोजन निकालना है और कार्बोकेटायन फॉर्म करना है, करेक्ट। अब ये हैलोजन निकल तो जाता है बट उसके बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हैं कि वापस वो कार्बन पे अटैक कर दे।
न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने के पहले ये हैलोजन खुद वापस कार्बन पे अटैक करके वापस मुझे रिएक्टेंट ही दे दे, जो मुझे नहीं चाहिए। तो मुझे इस हैलोजन को दूर रखना है इस कार्बोकेटायन से। तो दूर रखने के लिए मैं क्या करूँगी, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लूँगी, जैसे कि वाटर। इसमें पोलरिटी भी है क्योंकि हेटेरो एटम प्रेजेंट है, और प्रोटिक मतलब हाइड्रोजन, प्रोटिक मतलब हाइड्रोजन चाहिए। तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इस नेगेटिव चार्ज के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा और इसको सराउंड कर लेगा। बहुत सारे वाटर आके इस नेगेटिव चार्ज को सराउंड कर लेंगे, मतलब सॉल्वेट कर देंगे, उसको बोलते हैं सॉल्वेशन। सॉल्वेशन मतलब ये वाटर सॉल्वेंट है जो इस हैलोजन एटम को सराउंड कर रहा है, इसलिए इसको कहेंगे सॉल्वेशन। सराउंड कैसे करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बना के, इसलिए हमें चाहिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। और इसको यदि एक बार सराउंड कर दिया तो ये वापस कार्बोकेटायन पे अटैक नहीं कर पाएगा और फिर मेरा न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर देगा। इसलिए मुझे फर्क ही नहीं पड़ेगा मेरा न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग है कि वीक। इसलिए मेरा सॉल्वेंट मुझे SN1 के लिए हमेशा पोलर प्रोटिक चाहिए, जो मेरे हैलोजन को दूर रखे मेरे कार्बोकेटायन से। नेक्स्ट थिंग है, SN2 रिएक्शन के लिए मुझे अप्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए, जस्ट अपोजिट ऑफ दिस। क्यों? क्योंकि SN2 रिएक्शन में क्या हो रहा है, मेरा न्यूक्लियोफाइल फर्स्ट स्टेप में ही मेरे कार्बन पे अटैक कर रहा है। यदि मैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले लूँ यहाँ पे, तो न्यूक्लियोफाइल ही सराउंड हो जाएगा मेरे सॉल्वेंट से, मतलब सॉल्वेसिस न्यूक्लियोफाइल का ही हो जाएगा। और न्यूक्लियोफाइल सॉल्वेसिस हो गया तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बन पे नहीं, तो मुझे प्रोडक्ट ही नहीं मिल पाएगा। इसलिए मुझे अप्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए जिसमें हाइड्रोजन ना हो, जिसमें हाइड्रोजन ना हो। जैसे DMSO यूज करते हैं, उसमें हाइड्रोजन नहीं होता। तो हाइड्रोजन नहीं होने की वजह से क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल को कोई सराउंड नहीं करता और वो इजिली मेरे उस कार्बन पे अटैक करके मुझे प्रोडक्ट दे देता है। इसलिए SN1 के लिए चाहिए पोलर प्रोटिक, मतलब विथ हाइड्रोजन। इसके लिए चाहिए अप्रोटिक की हाइड्रोजन नहीं। ठीक है, तो आप याद रखना। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टू कंपाउंड्स वुड रिएक्ट फास्टर बाय SN2 मैकेनिज्म एंड व्हाई? सो फर्स्ट कंपाउंड है 1-chlorobutane, दैट इज प्राइमरी अल्काइल हैलाइड. Second is 2-chloropropane, that is secondary alkyl halide. And you know that primary alkyl halides react faster than secondary for SN1 reaction. क्यों प्राइमरी फास्ट रिएक्ट करते हैं सेकेंडरी से? क्योंकि वहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होने वाला है। ट्रांजिशन स्टेट में 5 बॉन्ड्स कार्बन के साथ होने चाहिए और वो 5 बॉन्ड्स सिर्फ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में इजीली फॉर्म हो सकते हैं और इसलिए प्राइमरी अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करेगा। इसलिए 1-chlorobutane will react faster via SN2 mechanism than 2-chlorobutane. And that's all for today. Thank you. And if you have liked my video, please give me a thumbs up. Share this video to more and more of your friends so that I can make better and more innovative videos for you. Any suggestion, any doubt, ask me on askyourdoubt04@gmail.com or in the comment box. If you have liked my video, please write in the comment box. Please share your views about my videos, any suggestions, anything, that will be always welcomed. And that's all for today. Thank you. And today's thoughts of the day is, take risks in your life. If you win, you can lead. If you lose, you can guide. And that's all for today. Thank you. Stay tuned.